Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is we are discuss class 12 English important questions, book first Flamingo. So let's start our videos with today's good thought. So today's good thought is confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. So let's start our videos. First question is, who was Rat Trap and what made the paddler finally change his way? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रैट ट्रैप कौन है और उसने फाइनली अपने आप को कैसे चेंज किया. द रैट ट्रैप वॉज अ वैगाबॉन्ड who live all alone and poverty stricken life. He sells rat trap for his livelihood. So rat trap was a vagabond और who lived poverty stricken life. वो एक गरीब व्यक्ति की लाइफ जी रहा था और उसने अपने आप में फाइनली चेंजेस लाए, जिसका रीज़न था आयरन मास्टर की बेटी एडला विलियमसन की सिंपैथी. सो वी सी अ आंसर व्हेन आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज दैट बाय मिस्टेक दे हैव इन्वाइटेड अ रॉन्ग पर्सन, देन ही वांटेड द पैडलर टू बी सेंट अवे फ्रॉम द प्लेस, बट आयरन मास्टर्स डॉटर सो कॉन्फिडेंस इन हिम एंड asked him to have food. Paddler was moved by her kindness and he was reformed. Complete our answer. Next question is, how did the paddler earn his livelihood? What kind of life did he live? हमें बताना है कि पैडलर अपनी जीविका कैसे अर्जित करता था और वह किस प्रकार का जीवन जी रहा था. तो द पैडलर अर्न हिज लिवलीहुड बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर which he used to make himself from the material got by begging in the stores or at big farms. So पैडलर अपनी लिवलीहुड अपनी जीविका के लिए स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर सेल करता था जो वो खुद बनाता था. बट दिस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल, पर ये उसके लिए लाभकारी नहीं था. सो ही हैड टू बैग और इवन स्टील, तो वो कभी कभी छोटी मोटी चोरियाँ और बैगिंग करना कर लेता था. ही roamed about like a vagabond all alone. He lived a sad and monotonous life with no one to welcome him. Now next question is, why did the paddler decline the iron master's invitation? पैडलर ने आयरन मास्टर के इनविटेशन को मना क्यों कर दिया? The paddler was a thief. If he would have accepted the invitation, then it's like throwing himself for suicide. So he refused the invitation. यदि पैडलर आयरन मास्टर का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता तो उसे डर था कि उसने चोरी की है, कहीं वह पकड़ा ना जाए, इसीलिए वह आयरन मास्टर के इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was Crofter? How did the Crofter treat the paddler and why? Crofter कौन था और उसने पैडलर के साथ कैसे ट्रीट किया? तो the Crofter was a lonely man without wife or child. He lived little grey cottage by the roadside. He craved and desired human company to share his loneliness. He welcomed to the paddler and offered him porridge for supper and even tobacco. He played cards with him. He even showed him his earnings and let him know where it was kept. The crofter was lonely man. Crofter एक अकेला रहने वाला आदमी था जिसकी वाइफ और बच्चे दोनों ही नहीं थे. He lived little और वो एक छोटी सी ग्रे कलर की कोटाज में रहता था जो रोड साइड पे थी और उसे एक ऐसी ह्यूमन कंपनी की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी लॉनलीनेस शेयर कर सके, अपना अकेलापन शेयर कर सके. तो पैडलर आता है तो वो पैडलर का वेलकम करता है, उसको स्वागत करता है और उसके साथ खूब सारी बातें करता है और खाना खाता है और कार्ड्स भी खेलता है. और यहाँ तक कि वो उस पर इतना विश्वास कर लेता है कि उसने अब तक जितना भी कमाया था, उसकी जितनी भी अर्निंग थी, उसके बारे में भी वो पैडलर को सब कुछ बता देता है. तो इसका आंसर तो कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
So next question is, the author Louis Fisher described Rajkumar Shukla as being resolute in his story. Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? इस क्वेश्चन में बताना है कि लुइस फिशर ने राजकुमार शुक्ला को एक रिसोल्यूट पर्सनालिटी बताया है। तो अब हमें बताना है कि उन्होंने राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों कहा है। राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। Rajkumar Shukla wanted Gandhiji to fix a date of his visit Champaran. Gandhiji could not commit himself because he had many appointments. Rajkumar Shukla is described as resolute because he had not leave Gandhiji's side till he fixed the date. ऑथर ने अपने इस स्टोरी में राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी बताया है क्योंकि उन्होंने पूरा विश्वास रखा था कि गांधी जी उनके साथ चंपारण जाएंगे और उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और लैंडलॉर्ड जो शेयर क्रॉपर्स पर इनजस्टिस कर रहे थे उसको रोकेंगे भी। बट गांधी जी के पास बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही थी, इसीलिए गांधी जी कोई डेट फिक्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने एक फिक्स डेट तय नहीं कर ली गांधी जी के साथ चंपारण की विजिट पर जाने के लिए। सो कंप्लीट आवर आंसर। नाउ वी टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, list the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. अब हमें लिस्ट बनानी है कि गांधी जी ने शुक्ला के साथ फर्स्ट मीटिंग अरेंज करने के लिए किन किन प्लेसेस पर गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि शुक्ला मीट गांधी जी टू लखनऊ, देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर प्लेसेस। शुक्ला गांधी जी को लखनऊ में मिले थे और फिर वहाँ से वे कानपुर गए और अदर प्लेसेस में गए। देन गांधी जी रिटर्न टू अहमदाबाद। कानपुर से वे अहमदाबाद वापस आए। द गांधी जी वेंट टू कोलकाता और फिर वे कोलकाता गए। फ्रॉम कोलकाता गांधी जी ट्रैवल टू पटना विद राजकुमार। फिर कोलकाता से गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ पटना गए। फ्रॉम पटना गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरनगर और पटना से फिर मुजफ्फरनगर। देन ही वेंट टू चंपारण। उसके बाद वे चंपारण आए। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की मेन प्रॉब्लम क्या थी। सो शेयर क्रॉपर्स की जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी चंपारण का लैंडलॉर्ड सिस्टम। द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट दैट वर ओन्ड बाय इंग्लिश मैन। जो वहाँ की उसे डिवाइड कर रखा था और उसके ओनर थे इंग्लिश मैन। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और वहाँ की जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, मुख्य फसल थी, वो इंडिगो की थी। द लैंडलॉर्ड फोर्स्ड ऑल द टेनेंट्स टू 15% ऑफ दियर होल्डिंग विद इंडिगो। उनकी जो 15% होल्डिंग होगी वो इंडिगो की होगी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और उस पूरी की पूरी इंडिगो हार्वेस्ट को एज अ रेंट पहले ही बुक्ड कर दिया जाता था और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। यानी कि इस एपिसोड ने वहाँ के पीजेंट्स की जो लाइफ थी, जो स्थिति थी, वो कैसे चेंज कर दी थी, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। सो द एपिसोड लिबरेटेड द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो इस एपिसोड ने पीजेंट्स को स्वतंत्रता दिलाई थी ब्रिटिश के डर से। नाउ दे कुड फेस द ब्रिटिश विद करेज। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फेल टू डिमोरलाइज्ड दैट दे लेफ्ट दियर estates which reverted to the peasants. The peasants had not to plant indigo anymore. Besides, they got back a part of the money they had paid to the British. इस एपिसोड के बाद पीजेंट्स की प्लाइट पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उन्हें लैंडलॉर्ड को भी फेस नहीं करना पड़ता था और ना ही उन्हें कोई टैक्स देना पड़ता था और ना ही उन्हें कोई इंडिगो प्लांट्स ग्रो करने होते थे। अब वो पूरी तरह से लैंडलॉर्ड सिस्टम से आज़ाद हो चुके थे और उनकी सिचुएशन पहले की अकॉर्डिंग पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि
10th question is, why do you think Gandhi ji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? हमें बताना है कि गांधी जी को क्या लगता था कि ये चंपारण एपिसोड उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमें बताना है कि गांधी जी के जीवन की ये महत्वपूर्ण घटना क्या बन गई थी। So let's see our answer. Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point because from now the peasants have come out of the fear from Britishers. He had come to Champaran to visit Shukla for few days, but after seeing the miserable conditions he lived there for 7 months. The British landlord used to treat peasants as the slaves. The peasants have to cultivate indigo for them. गांधी जी ने चंपारण एपिसोड को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना इसलिए कहा है क्योंकि वे चंपारण में आए थे राजकुमार शुक्ला के थ्रू, लेकिन वे यहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रहने आए थे। बट वहाँ के पीजेंट्स की मिसरेबल कंडीशन को देखते हुए वे वहाँ पे पूरे 7 महीने रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने उन पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड सिस्टम से फ्री भी करवाया और ब्रिटिशर्स के फियर से भी उनको फ्रीडम दिलवाई। और इसके आगे, बट व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड सिंथेटिक इंडिगो the cultivation of indigo was stopped in India, as now the price of indigo will come down. Was moved into the court where Mr. Gandhi was declared the winner. The peasants got a small part of money as compensation. Their fear towards British was now shattered. इतना ही नहीं, जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था तो जो इंडिया की कल्टीवेशन थी इंडिगो की वो स्टॉप कर दी गई थी, जिससे इंडिया में जो इंडिगो की हार्वेस्ट थी उसकी प्राइस भी डाउन हो गई थी। तो मिस्टर गांधी ने इस चीज़ को कोर्ट तक ले गए और वो इस केस में विनर भी हुए और चंपारण के शेयर क्रॉपर्स को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम भी मिल गई और उनका फियर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उन्हें स्मॉल पार्ट ऑफ मनी भी ब्रिटिशर्स की तरफ से दी गई। तो ये इंसिडेंट गांधी जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस इंसिडेंट में गांधी जी ने कई ऐसे काम किए थे पीजेंट्स के लिए जिनसे उन पीजेंट्स की ज़िंदगी ही बदल गई थी। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, गिव इन टेंसेस। हमें बताना है कि गांधी जी ने वहाँ के लॉयर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे प्रभावित किया। So our answer is, Gandhiji uplifted the voice against British landlord so that he can free the peasants from their fear. The lawyers were in the support of Gandhiji. Gandhiji first alarmed the lawyers that what they are doing, charging a poor peasants of so much amount. Then Gandhiji say, it is not good thing to do. जब गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाई ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के ख़िलाफ़ तो उन्होंने इसके लिए पीजेंट से कोई भी फ़ीस नहीं ली थी। लॉयर्स भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे और लॉयर्स ने भी गांधी जी का बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन जो लॉयर्स थे वो पीजेंट्स का केस लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट मांग रहे थे फ़ीस के रूप में। तो गांधी जी ने बोला इट इज़ नॉट गुड थिंग्स टू डू, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाय सीइंग गांधी जी फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ पीजेंट, द लॉयर्स रियलाइज दैट दे वर रॉन्ग एंड नाउ स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ पुअर पीजेंट। फिर लॉयर्स ने भी ये ठान लिया कि हम भी पीजेंट्स के हक़ के लिए लड़ेंगे और इस तरह से लॉयर्स को रियलाइज़ हुआ कि वे गलत थे और फिर उन्होंने अपने आप में चेंजिंग लाए। तो इस तरह से गांधी जी ने लॉयर्स को इन्फ्लुएंस किया और पुअर पीजेंट्स के राइट्स के लिए लड़ने को उकसाया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो हमने अभी तक पढ़ा कि गांधी जी ने कैसे अपना सहयोग दिया था पीजेंट्स के लिए। अब इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम मूवमेंट में, यानी उन्होंने अपना सहयोग फ्रीडम मूवमेंट में कैसे दिया। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नाउ दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि उन्होंने अपने आप को कैसे फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया।
तो इस स्टोरी में ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें ऑर्डिनरी पीपल्स ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया है। तो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट ऑर्डिनरी पीपल डू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। व्हेन गांधी जी वॉज इन प्रॉब्लम विद द ऑथोरिटीज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर अराउंड द कोर्ट बिल्डिंग। जब गांधी जी प्रॉब्लम में थे तो अथॉरिटीज़ के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर अराउंड द कोर्ट, हजारों लोग बिल्डिंग्स के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे गांधी जी की हेल्प के लिए। ड्यूरिंग द अपलिफ्ट ऑफ चंपारण, ऑर्डिनरी पीपल हेल्प इन मेकिंग द पीपल गो फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट बाय टीचिंग दैम, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड मैनी मोर। और ड्यूरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ चंपारण, जब चंपारण में लैंडलॉर्ड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई थी, तब भी कई सारे पीपल्स ने गांधी जी की हेल्प की थी और एक दूसरे में सहयोग बनाकर उन्होंने अपनी भी मदद करी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये सारे थे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, तो आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। आज के लिए बस इतना ही। और भी जानने हैं आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइज़।